ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನೋ ಸಿಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಧೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದನ್ ಇವತ್ತ, ಹೇಮಂತ್ಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹೇಮಂತ್ ನಸ್ಕಿನಾಗ 7:05 ಯಾಕೆ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕ? ನಾಳೆಗೆ 5 ನೀ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನೋಡ್ ನನಗಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಇವತ್ತಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಕೊಂತ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಬಂದಾರ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಅವರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಹೂಗಾರ್, ಮೇಘನಾ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಮೇಘನಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಸ್ಕಿನ ಕಾಣ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ನಸ್ಕಿನ ಕಾಣ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನಸ್ಕಿನಾಗ ಹುಂಜಾನೆ ಒಳತಾವಂತ ಕೋಳಿ ಮಕ್ಕೋತಾವಂತ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ. ನಾಳಿಗ್ ನೀವ್ ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕ್ ನಂಗೆ. ಪಾಪ್ ಸರ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ದಂದ್ರ ಆಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದಂಗ್ ಕೂಡ್ತಾರ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸಂಗಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಬುರಾವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ ಸರ್, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್, ನರೇಶ್ ಸರ್, सर आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने बहुत बड़ा ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, तो हमारे टीम से आपको बहुत हार्दिक स्वागत है नरेश सर. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಮಂಗಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೂ, GM ಅಂತ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ ಅಕ್ಕೆಣ್ಣ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಸುನೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರಿಗೂ, ಅಜಿತ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೂ, MK ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಿಗೇರ್, ಆನಂದ್ ಹೂಗಾರ್, ನಮ್ಮ ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಹೋದ್ಸಲ ಬೆಸ್ಟ್ 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 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ವೀಣಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ದಾನೇಶ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಪ್ರಿಯ ಸಾವಳ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡರಿ, ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಯಿಗೆ ನಿಯತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಯತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರೆ? ಎಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಯಿಗೆ ನಿಯತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಯತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಗಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ 40 minutes to 45 minutes ದಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾದಾಗ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಇಂತ ತೋರ್ಸ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟೆದಂತ. ಚಂದ ಅದಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆದದು? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಆಕಳ ತೋರ್ಸ್ರಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ದದಂತ. ನೋ ವೇ. ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಕಣ್ಣಿದ್ದವ್ರೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೀವಂದ್ರ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೌನ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸದವ್ರೇ ಇಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ ಜೀವನ ಅಂದ್ರ ಏನು ಕೆಲ್ಸದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ 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 ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಲತ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ತೆಗ್ದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರ, ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಬಳಸ್ಲತ್ತಾರ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ ಜೀವನದೊಳಗ್ ಬೆಳಕಾಗ್ಯಾರ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ್ ಇದ್ದಿರುವ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ, ಹಂಗಂತೇನ್ ಅವ್ರ ಒಬ್ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಸಮೇತ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವು ಅವಯವ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂದ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ. ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ. ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲಿತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜನ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರಿ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಮೊದ್ಲಿನ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡೈರಿ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10,000 20,000 ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ನಿಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ 1 lakh ಇದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷದ್ದೇ ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷದ್ದು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಥಾಟ್ ನಮ್ ಮೈಂಡಿನಾಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರ ಗಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಕಲಿ ನೀನು ಅಂತ. ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಗಳಿಕೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಪದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ನಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕನಸುಗಳು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದೇವಲ್ಲ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರಿ. ನಾನಂತೂ ಬಹಳ ಕನಸು ನೋಡಿನಿ. ಮತ್ ನಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕನಸು ನನ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನ್ಸಾಗ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ಈಗ ಹೊಸ ಕನಸು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದವ್ರು ನಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ತಗೊಳಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Y'all ready for this? Are you ready? ಎಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಏನೋ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಮ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿನಿ. ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೇವು, ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ವಾಂಖೇಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಪ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. सो सर आपको वेलकम है हमारे टीम के तरफ से, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपको, थैंक जो यू हमारे टीम के लिए आपने वक्त निकाला सर। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 32 लोग हैं, तो फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, फटाफट जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि जहां पर नरेश वानखेड़े होता है वहां पे एनर्जी होती है, और वहां पर आपको आज ऐसा कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का कंटेंट है, और एकदम क्रीम कंटेंट आप सभी लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। सो सभी लोग अपना कैमरास को ऑन कर लीजिए, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने के लिए मिलेगी। पहले सभी लोग अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे हुए, तो सभी लोग फटाफट जल्दी से मुझे बताएंगे। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सभी लोग बैठे। हाँ, मेघना जी और सर, मेघना जी के साथ में जो सर बैठे, सर स्ट्रेट होके बैठ जाइए, सर स्ट्रेट होके बैठ जाइए, है ना, बिल्कुल, यस यस, ग्रेट, ओके। चलिए ग्रेट, सभी का आज के इस सेशन के अंदर सभी का स्वागत है, और डेफिनेटली आज हम बहुत सारी चीजें इस सेशन से सीखेंगे कि हमको ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर क्यों आना चाहिए, ट्रेनिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों हो रहा है ना, क्यों हमें ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है। तो कुछ चीजें, कुछ फैक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और सभी लोगों को एक एक चीजों को नोट करना है, क्योंकि एक एक चीजें आपको मैं गारंटी देता हूं कि केवल ये अगर ये 45 मिनट आपने एकदम अटेंटिव होकर इस सेशन को अटेंड किया, तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अगर आपने सिर्फ ये 45 मिनट अटेंड किया, और ये 45 मिनट में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजों को इंप्लीमेंट किया, तो पूरी तरीके से आप आज के बाद में, आज आप जैसे है वैसे आज के बाद में नहीं रहने वाले। केवल सिर्फ आपको करना क्या है, जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो सभी लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो अच्छा लर्नर होता है, जैसे मैम ने भी कहा, मुझे कम समझती है लेकिन इतना जरूर समझ में आता है, जो अच्छा लर्नर होता है वो अच्छा अर्नर होता है। अगर आप लाइफ में अच्छी तरीके से सीखोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑन है, बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, ठीक है, तो आप ऑन करोगे तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, आप ऑफ रखोगे तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑन रखोगे, जैसे यहाँ पे प्रीति जी का है ना, मैं यहाँ पे मेघना जी को देख पा रहा हूं, तो इन लोगों को मैं देख पाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं ज्योति मैम को देख रहा हूं, तो ज्योति मैम, मेरी आंखें ज्योति मैम को देख रही, ज्योति मैम कोई चीज करने से पहले 10 बार सोचेंगे, उठ के जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, क्योंकि मेरी आंखें उन्हें देख रही है और वो मुझे देख रहे हैं। तो आपका जिस समय आपका कैमरा ऑन होता है उस समय आप पूरी तरीके से अटेंटिव होके चीजों को देखते हैं कि हमें कोई देख रहा है। बोलते हैं ना, स्कूल के दिन याद है आपको, स्कूल में जब टीचर क्लास के अंदर होता था तो हम क्या करते थे, एकदम साइलेंट होके बैठते थे और क्लास को अटेंड करते थे। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया, हम क्या करते थे, चिल्लाना शुरू कर देते, शोर मचाना शुरू कर देते। क्यों, क्योंकि हमें कोई नहीं देख रहा है। तो वैसे ही जब आपका कैमरा ऑन ऑफ होता है ना, तो उस समय आपको ये लगता है यार कोई नहीं देख रहा है, अभी मैं किसी से बात कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमें कोई ये नहीं करेगा। लेकिन कैमरा ऑन रहेगा तो आप 10 बार ये कोई भी चीज को करने से पहले सोचोगे। तो सभी लोग एक शांत जगह पर बैठ जाए और ध्यान से एक एक चीजों को नोट करना है, जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि
बहुत क्रीम कंटेंट है ये, क्योंकि अभी मैं एक बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर थे, जिसे फाइनेंस का गुरु माना जाता है, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना, रॉबर्ट एलन, उनकी मैं ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ। तो वहां से बहुत क्रीम कंटेंट, क्योंकि आप यकीन करोगे कि वहां का जो चार्जेस एक दिन का था। अगर फर्स्ट डे आप अटेंड करते हो तो 2,000 रुपए, अगर आप सेकेंड डे अटेंड करते हो तो 35,000 रुपए, अगर आप 3 दिन अटेंड करते हो तो वहां का चार्ज था 5 लाख रुपए। कितना? 3 दिन का 5 लाख। समझ रहे हो? और वो क्रीम कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अभी हमारा लेवल वो नहीं है। आप लोगों, अभी जैसे आप अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का सोचेंगे, आप सोचेंगे यार 50,000 1 लाख रुपए खर्च करूं या ना करूं, लेकिन अब यकीन करेंगे, इंडिया के 1,000 लोग थे जिन्होंने 3 दिन के 5 लाख रुपए दिए थे। कितने? 1,000 लोग। और जब उन लोगों के साथ में मिला ना, तो मुझे पता चला कि यार वो लोग क्या थे। वो लोग वो लोग कभी नहीं थे जो हर शादी में जाते, हर शादी को, हर पार्टी को अटेंड करते। वो लोग नहीं थे जो हर मूवीज को, हर पिक्चर्स को, अगर जो मूवी रिलीज हुई उसको देखने जाते। वो नहीं थे जो हर पार्टी में, हर फंक्शन में जाते। जब मुझे समझ में आया कि यार ये लोग इतने अमीर क्यों है, क्यों ये लोग 3 दिन का 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। मेरा भी उतना बजट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अटेंड किया। क्यों? क्योंकि मुझे यार वो चीज समझ में, क्या मैं ये चीज जानना चाहता था कि ये लोग, इनके अंदर क्या क्वालिटी क्या होती है ऐसी, जो ये 3 दिन का 5 लाख रुपए देने को तैयार है। भाई कुछ तो बात होगी ना, नॉर्मल लोग तो होगे नहीं जो 3 दिन का 5 लाख रुपए दे रहे। तो इन लोगों का है क्या, क्वालिटी क्या है, क्यों ये लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर। तो समझ में आया कि ये नॉर्मल पर्सन से तो बिल्कुल अलग ही सोचते, तभी वो उस लेवल के ऊपर है, तभी वो उस लेवल के ऊपर है, क्योंकि वो पैसा खर्च करने के लिए कभी नहीं सोचते, वो सीखने के लिए कभी नहीं सोचते। 60 साल 70 साल की उम्र के लोग भी वहां पे आए थे, और वो भी अभी भी पढ़ाई कर रहे, वो अभी भी सीख रहे। और नॉर्मल पर्सन क्या करता है, 40 के बाद में बोलता है बस यार अब तो मेरी उम्र हो गई, 50 का हो गया, अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं नहीं सीख सकता, बस। ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपके साथ में वही कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सभी लोगों को ध्यान से एक एक चीजों का नोट्स बनाना है, सभी लोगों को अपना कैमरा ऑन करना है, और लास्ट में सभी लोगों के क्वेश्चन, आज सभी के लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये कि सभी लोगों के क्वेश्चन में लूंगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, माइंड में जो भी चीज रहेगी, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनर और कोच बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? भाई ट्रेनर कोच बनना है, लेकिन क्यों? और क्यों बहुत सारे लोग ट्रेनर कोच नहीं बन पाते? क्यों बहुत सारे लोग अपने जीवन में शुरुआत तो करते हैं, हर व्यक्ति, मुझे बताइए, जब हम छोटे होते, जब हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होते, तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं लखपति बनूं, मैं करोड़पति बनूं। हर व्यक्ति का ये सपना होता है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका ये सपना होगा कि यार मैं सक्सेस नहीं होना चाहता, एक भी ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का होता है, लेकिन यार इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं हो पाता, व्यक्ति सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे का कारण क्या है? तो यहां पर कुछ स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, कि मैं इसे कहता हूं 4C। ये 4C होता है जिस कारण से लोग अपनी जिंदगी में फेल होते हैं। और हर कोई, जितने भी फेलियर पर्सन है और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ये 4 चीजों के कारण ही लाइफ में पास होते हैं, और ये 4 चीजों के कारण ही लाइफ में फेल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कारण है कंफर्ट। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। सर मैं तो सुबह ना नहीं उठ सकती जल्दी, मैं क्या करूं, मैं तो रात में लेट सोती हूँ, मुझे तो है ना अपने घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है, मुझे तो है ना जॉब पे जाना पड़ता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत थक जाता हूं,
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे ऐसे लोगों से मिला जो 8-8 10-10 कंपनी रन कर रहे हैं, उसके बाद में शाम में आके सीखते हैं भाई, शाम में आके लर्निंग करते हैं अपनी कि और क्या करूं। लेकिन नॉर्मल पर्सन क्या बोलता है, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता सीखने के लिए। अगर मैं बोलूं उसको कि भाई तुझे 5 लाख रुपए अगर कमाना है तो 2 लाख रुपए खर्च कर दे, वो 100 बार सोचेगा करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठा रहेगा। और जब तक आप आपके कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे तब तक आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। और जितने भी लोग आ रहे हैं, एक बात याद रखना, जितने भी लोग हमारे मेन प्रोग्राम में ट्रेन द ट्रेनर के मेन के प्रोग्राम के अंदर है, एक बात तो ध्यान रखना, आप में से कितने लोग हैं जो फ्लाइट के अंदर बैठे हुए, फ्लाइट में बैठे हुए कितने लोग ऐसे जो फ्लाइट में जिन्होंने ट्रेवल किया हुआ है? ओके, ज्योति मैम ने किया हुआ है। ओके चलिए, मतलब कुछ लोगों ने ट्रेवल किया हुआ है। तो ज्योति मैम आपने एक चीज देखी होगी, जब फ्लाइट टेक ओवर करती है तो अनाउंसमेंट होता है कि अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध ले। क्या बोलते हैं? अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले। तो आप में से जितने भी लोग मेम के साथ ट्रेनिंग में आ रहे, ट्रेन द ट्रेनर के अंदर आ रहे, तो उन लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा कि भैया अपनी कुर्सी की पेटी को अच्छे से बांध लेना, क्योंकि आप उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा एक तरीका अलग है, मैं अलग तरीके का इंसान हूं। मैं कभी नहीं देखता हूं कि आपकी एज क्या है, मेरी एज क्या है, मैं कभी वो चीज नहीं करूंगा। जिस समय आप मेरे प्रोग्राम में रहोगे उस समय में भले आपकी कोई भी एज हो, मैं आपको डांट फटकार के मैं आपसे काम करवा के लेने वाला इंसान। क्योंकि मुझे पता है कि जो मतलब मेरे गुरुओं ने मुझे सब्जी बेचने से लेकर एक ट्रेनर बनाने तक का जो सफर तय किया, जो रोड के ऊपर सब्जियां बेचता था इंसान, वहां से लेकर मुझे यहां तक उठाया, तो उन्होंने मेरे साथ में, उन्होंने जैसा मुझे बोला, जो बिहेव मेरे साथ में किया, मुझे पता है कि वो चीजें मुझे गलत जरूर लगती थी उस समय, लेकिन उसका रिजल्ट आज मैं हूं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ चीजों का बुरा जरूर लग सकता है कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे ये कर, बट ये चीजें आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटियों को जरूर कस के बांध लेना, क्योंकि आप उड़ान हमारे साथ में भरने वाले हो। जितने भी लोग आ रहे और जो लोग नहीं भी आ रहे ना, उन लोगों को भी एक ही बात बोलूंगा, डिसीजन ले लो और छोड़ दो, बस ये छोड़ दो हमारे ऊपर कि अब आप देख लो। फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी अगर ये 3 महीने, ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर अगर पूरी तरीके से 360 डिग्री अगर नहीं चेंज हुई ना, तो आप मुझे बोल देना। बस कंडीशन एक ही रहेगी कि जितना हम बताएंगे, जैसा हम बताएंगे वैसा आपको फॉलो करना है बस। तो सबसे पहला होता है हमारा कंफर्ट जोन, जो हमको छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी मुझे सभी लोग टाइप करके बताएंगे कि सर आज के बाद में हमारे कंफर्ट जोन को हम तोड़ने वाले हैं। कितने लोग ये चीज अभी यहां पर सभी लोग टाइप करके बताएंगे सर आज के बाद हम हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ने वाले हैं। यस, धनु जी तोड़ने वाले, अर्चना जी तोड़ने वाले, यस सभी लोग टाइप करेंगे। और सभी लोगों को अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है। सुनीता मैम है, ओके ग्रेट, फटाफट सभी लोग टाइप करके बताएंगे, सभी लोग, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। चलिए प्रीति मैम, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड होता है चेंज। अब ये चेंज क्या है, ये चेंज है क्या? चेंज मीन्स होता है परिवर्तन। आपको आपके अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आप जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है, नोकिया कितने लोगों ने देखा है? नोकिया का मोबाइल कितने लोगों ने देखा है? नोकिया का जो सादा कीपैड वाला मोबाइल था, कितने लोगों ने देखा है? जब नोकिया मार्केट में था बहुत अच्छा उसने ग्रो किया, ठीक है, मिलियन करोड़ रुपए की उनकी कंपनी थी। लेकिन जब एंड्रॉयड का मॉडल उनके पास आया तो नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया।
कि नहीं, हमको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे ही HTC मॉडल, एंड्रॉयड मॉडल लॉन्च हुआ, अब यकीन करिए नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया। आज नोकिया मार्केट में है तो सही, लेकिन कितने लोग उसको यूज करते हैं? आज सैमसंग लोगों के पास मिल जाएगा, आज एप्पल लोगों के पास मिल जाएगा, आज HTC लोगों के पास मिल जाएगा, सोनी मिल जाएगा। नोकिया कितने लोगों के पास है एंड्रॉइड? तो ये मार्केट का रिसर्च है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो आने वाले समय के साथ आप दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। और जहां पर आप दुनिया से पीछे छूटे, लोग आपको रोंद के चले जाएंगे, आपके ऊपर पैर रख के चले जाएंगे, क्योंकि ये नियम है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर नदी का पानी बहता रहेगा ना, तो ही वो अच्छा रहेगा। जिस समय नदी के पानी को, आप देखो, हम नदी का पानी पीते हैं या किसी तालाब का पानी पीते हैं? कौन सा पानी पीते हैं बताइए, नदी का या तालाब का? नदी का। क्यों? क्योंकि वो बहता रहता है, इसी वजह से वो शुद्ध है। तालाब का पानी एक ही जगह पर रहता है, इसी वजह से वो पानी सड़ जाता है। और ऐसा ही हमारी लाइफ के, इंसान की लाइफ के अंदर होता है। जो अपनी लाइफ को अपडेट करता है वो लाइफ में ग्रो करता है, और जो लाइफ में अपडेट नहीं करता है वो रुक जाता है। अब आप लोगों को ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कोरोना ने हमें ये चीज सिखाई कि भैया अपडेट कर ले, नहीं तो ना पूरी जिंदगी तेरी बदल जाएगी। अपडेट कर ले। कोई जॉब चल रही है ना, अपडेट कर ले। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 60-60 साल से, 50-50 साल से जॉब में, एक ही जॉब में अटके थे, कोई स्किल नहीं सीखी, कोई नॉलेज नहीं लिया एडिशनल। सरकारी जॉब में तो सरकारी जॉब को लेके बैठे हुए थे, टीचर है तो टीचर की जॉब को करते हुए बैठे हुए थे, कोई कंपनी के अंदर है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो वो चीजों को लेके बैठे हुए थे, अपने आप को अपडेट नहीं किया। लेकिन कोरोना अपने आप को सिखा दिया कि भाई अपडेट नहीं करेगा तो 3 महीने तक के ऐसी हाल हो जाएगा, खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो आपको अपडेट करना, चेंज होना बहुत जरूरी है। तो आज से आप लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाना है। सेकेंड थिंग, तीसरी चीज, क्लियरिटी। अभी क्लियरिटी क्या है? क्लियरिटी क्या है? कोई बताएगा क्लियरिटी क्या है? यहां पे क्लियरिटी लिखा हुआ है, क्लियरिटी है क्या? अच्छा, गोल, ग्रेट। आनंद जी ने कहा ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्लियरिटी मीन्स होता है कि भाई, यहां पर जैसे आनंद जी ने लिखा ग्रेट, यही होता है क्लियरिटी, यानी आप आपकी लाइफ को लेकर कितने क्लियर हो। आपको सुबह से लेकर शाम तक कौन से काम करना है, क्या आपको पता है? आपको कौन से लोगों के साथ बात करना है, आपको पता है? आप कौन से दोस्तों को आपके साथ में रखते हैं, आपको पता है? किसके साथ में रहने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा? आपको ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। आप उन लोगों के साथ में अगर अपना जीवन बिता रहे ना, जो खुद कुछ नहीं करते, यकीन करिए 5 साल बाद आप भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज के बाद में ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उन लोगों को छोड़ के वो लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, उनको सुनना शुरू कर दो। देखो जिंदगी कैसे चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आने वाले 5 साल के अंदर पूरी तरीके से लाइफ आपकी टर्न हो जाएगी, और ये गारंटी से बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता, मैं अपने आप का देता हूं। क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं ऐसे गांव से, ऐसी जगह से हूं जहां पे हर शाम हो गई कि लोग बढ़िया टल्ली होके आ जाते हैं, शराब पी के आ जाते हैं, टल्ली होके आ जाते हैं, गाली दे रहे हैं, कोई इधर मस्ती कर रहा है, कोई ये कर रहा है। मैं वैसी जगह से हूं, अभी भी मेरा घर इसी जगह पे है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं उन लोगों के साथ था, मैं भी वैसा ही था। लेकिन जैसे मैंने अपनी संगति को चेंज किया,
अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया, मैं अपनी लाइफ के बारे में क्लियर हुआ, पूरी लाइफ टर्न हो गई, पूरी जिंदगी टर्न हो गई। तो आप किन लोगों का साथ लेना पसंद करते हैं? क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, आपको कम से कम 3 से 6 महीने ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या 3 से 6 महीने में हो जाएगा? नहीं, आपको हमेशा हर दिन अपडेट करना पड़ेगा। हर दिन होता है ना, मोबाइल कितने लोगों के पास है? एंड्रॉइड मोबाइल कितने लोगों के पास है? हाथ उठाएंगे। यस, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है? आनंद सर एंड्रॉइड मोबाइल है? यस। अर्चना मैम एंड्रॉइड मोबाइल है? आनंद सर है? यस। तो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर हर 3 महीने बाद आपके पास में एक मैसेज आता है, अपडेट योर मोबाइल। अपडेशन का मोबाइल का आपके पास में रिक्वायरमेंट आता है 3 से 6 महीने के अंदर। अगर आप सेम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट का ऑप्शन आता है। भाई क्यों आता है? क्या जरूरी है? क्योंकि अपडेट का ऑप्शन इस वजह से आता है कि आप उसको अपडेट करोगे तो नया वर्जन आपके पास आ जाएगा और वो ज्यादा समय तक के आपका मोबाइल आपको सर्विस दे पाएगा। तो वैसे ही आप आपकी जिंदगी में अगर अपडेट नहीं करते हो तो ज्यादा लंबे समय सर्वाइव नहीं कर पाओ, आपकी जिंदगी वहां पर स्टेक हो जाएगी, उतने जगह पर आकर रुक जाएगी। अगर आप आपकी लाइफ में अपडेट करते तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, नई चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है। देन फिफ्थ है कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट क्या होता है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग थे, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो हर बार कमिटमेंट करते कि मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा। मैम ने बोला आपको जिंदगी में कुछ बदलना है, आपकी लाइफ के अंदर चेंज करना है, आपको ये चीजें सीखना है, आपको रोज गोल को सेट करना है, आपको रोज बुक पढ़ना है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यस, वहां पे टाइप करते यस, बहुत सारे लोग टाइप करते यस, लेकिन कल वापस वैसे के वैसे। हम रोज किताबों को पढ़ेंगे, हम रोज चीजों को सीखेंगे। आज मैंने ट्रेनिंग दिया, आज मोटिवेट हो गए, यस सर ने हमको ट्रेनिंग दिया, अब तो मेरे अंदर एक आग लग गई, अब तो मैं रोज करूंगा। कल वापस डूस, वापस वही की वही। तो कमिटमेंट, अब कमिटमेंट आपको कैसे लेना है? कमिटमेंट आपको कैसे लेना है? एक अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, लिख लेना अपने पास में। कमिटमेंट आपको आज अपने आप से लेना है। आज अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि आने वाले, अभी तक की मेरी जो स्थिति है, अगर मैं आज 50,000 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा हूं तो आज अपने आप से कमिटमेंट लो कि अगले 6 महीने मैं श्रीदेवी मैम को पूरी तरीके से डेडिकेट करने को तैयार हूं और मैं 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए तैयार हूं कि आने वाले 6 महीने बाद मेरी आज जो जिंदगी वो 6 महीने बाद नहीं रहेगी। हमसे कमिटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, हमको कमिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमसे झूठ बोल सकते हो, अभी आप बोलोगे कल आप फिर से चेंज जाओगे, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। और अगर अपने आप से झूठ बोलोगे ना तो जिस भी समय आपको मेरा ट्रेनिंग याद आएगा ना, आप खुद ऑटोमेटिकली चौंक जाओगे, आप खुद बोलोगे कि यार ये मैं अपने साथ में बुरा कर रहा हूं। ये पहली एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी कमिटमेंट की आपको एक और करना है आज। क्या सभी लोगों की फैमिली है? कितने लोगों की फैमिली है घर में? माँ बाप, बच्चे, बीवी? वेणुगोपाल सर है कोई घर में? यस है। आज सभी लोगों को सोने देना और जाके उन सभी लोगों के चेहरे को देखना। क्या करना है? आपके बच्चे हैं, आपकी बीबी है, आपके हस्बैंड है, आपकी माँ है, आपके पापा है, आज सभी लोगों को सोने देना और सभी लोगों के चेहरे को कम से कम 5 मिनट तक देखना और खुद से कमिटमेंट करना आज कि ये जो बेचारे ये सोए है ना,
ये मेरी जो मिसेस सोई है, मेरा हस्बैंड सोए है, ये जो मेरी वाइफ सोई है, ये जो मेरे बच्चे सोए, इनकी जिंदगी को मुझे चेंज करना है, इनकी जिंदगी को मुझे बदलना है। और मैं आज के बाद अपने आप से कमेंट करती हूँ, अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, या आने वाले 5 साल में मैं अपने माता पिता जो नहीं कर पाए, जो अपने बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो मैं अपने बच्चों के लिए करके दिखाऊंगी, वो अपने मैं बच्चों के लिए करके दिखाऊंगा। जो बीवी को मैं आज तक जो सुख नहीं दे पाया, जो जहां पर मैं घुमा नहीं पाया, जो चीजें उसके लिए नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले 5 साल बाद मैं उसके लिए करूंगा, उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। उनके चेहरों को देखना और देख के आज पूरी तरीके से कमिटमेंट ले लेना कि आने वाले 5 साल में पूरी तरीके से जिंदगी को बदलना चाहता हूं, पूरी तरीके से बदल दूंगा, पूरी तरीके से बदल दूंगी। और हर दिन जब भी ऐसा लगे ना कि आप लूज हो रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप काम को टाल रहे हो, उसी दिन वापस उन्हीं चेहरों को देख लेना एक बार। ऑटोमेटिक मेरे बोलने से, मैम के बोलने से आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, लेकिन उतने समय के लिए आएगा। लेकिन आपके ऊपर कौन से लोगों की जिंदगी आपके ऊपर टिकी हुई है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपको कभी ये चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार लूज, आपकी बैटरी कभी लूज ही नहीं होगी। आपकी बैटरी हमेशा वो ड्यूरेसेल, सुना है ना सेल का नाम, ड्यूरेसेल कैसा भागता है, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, तो ऐसा लाइफ में भागने लग जाओगे, कभी रुकोगे नहीं। तो ये 2 कमिटमेंट आज के बाद सभी लोगों को करना है। कितने लोग करने को तैयार है, कितने लोग ये 2 कमिटमेंट आज करने को तैयार है? यस, ग्रेट। अर्चना मैम, मेघना जी, वेणुगोपाल सर, ज्योति मैम, चलिए सभी लोग करने को तैयार है और करना भी चाहिए। ठीक है, आज करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मैम के साथ में जुड़े रहिए। देखिए 6 महीने बाद अगर नई लाइफ पूरी तरीके से टर्न हो गई ना, तो मुझे बोलना, क्योंकि मैम के साथ में अभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हर बार बहुत नई नई चीजें लेके आपके साथ में आऊंगा। और जिस दिन लेके आऊंगा उस दिन एक बम्पर, वो बोलते हैं ना, बम्पर आपको देके जाऊंगा। उसका नशा कम से कम 10 दिन तो नहीं उतरेगा, क्योंकि मेरा बम्पर ऐसा होता है, 10 दिन तक के नशा नहीं उतरने देता है। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत ही जबरदस्त चीज है कि लाइफ में ये चीजें तो हमने जान ली सर कि ये 4 कमिटमेंट तो इस कारण से लाइफ में फेल होते हैं लोग, और इसी कारण से लाइफ में लोग पास होते हैं। अब 5 ऐसी चीजें कौन सी है जो आपको लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है? अब 2 ग्रोथ होती है, एक होती है लीनियर ग्रोथ और होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये दोनों के अंदर अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये दोनों के अंदर अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। एक होती है लीनियर और होती है एक्सपोनेंशियल। लीनियर ग्रोथ, ये ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ग्राफ है। ठीक है, ये देखो, ये लाइफ चल रही है, ये आपकी लाइफ चल रही है, ये लाइफ चल रही है। ठीक है, यहां से लाइफ शुरू हुई, यहां पे आपने स्कूल कॉलेज पढ़ा, यहां पे कोई जॉब किया, और यहां से जॉब ज्वाइन करने के बाद ये आपकी लाइफ कंटिन्यू चलते रही। इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? ये बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ। और आज यकीन करिए, इंडिया के 99% लोगों की केवल लीनियर ही ग्रोथ है। वो क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्किल ही नहीं सीखते भाई, एक्स्ट्रा चीजें सीखते ही नहीं है, इसी वजह से लीनियर ग्रोथ है। लेकिन जो 1% लोग हैं, वो उनकी लाइफ कैसे होती है? ये उन्होंने कॉलेज किया, यहां पर उन्होंने कुछ सीखा, यहां पर वो गए, यहां पर फिर उन्होंने कुछ सीखा, फिर यहां से लाइफ में उतार चढ़ाव, उनकी लाइफ ऐसे ग्रोथ करती है, उनकी लाइफ ऐसे जाती है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल।
अब मुझे बताइए कि आप लाइफ के अंदर कौन सी ग्रोथ चाहते हैं, कौन सी ग्रोथ चाहते हैं, तभी मैं आपको आगे के 5 पॉइंट बताऊंगा, और ये 5 पॉइंट आपको वो ग्रोथ दिलाने वाले, अगर आपने फॉलो कर लिया तो। यस, ग्रेट। सभी लोग तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे मेन जरूरी कौन से 5 पिलर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में जरूरी है? फर्स्ट पिलर जो 2 है, लेकिन उनको मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। सबसे पहला होता है आपका विजन और मिशन, आपका विजन और मिशन। अब मुझे यहां पर आप में से कौन बताएगा कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? यस यस, प्लीज सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, बोलिए सर। सर विजन होता है कि शॉर्ट टर्म का गोल अचीवमेंट करना, प्लानिंग्स, एंड ओके, मिशन होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग अचीवमेंट। अच्छा ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। ताली बजाएंगे सभी लोग सर के लिए, उन्होंने एटलीस्ट बताया तो सही। चलिए और बताइए, और किसको पता है कि विजन और मिशन होता क्या है? भाई बहुत लोगों से सुना होगा लाइफ में कुछ विजन होना चाहिए, लाइफ में कुछ मिशन होना चाहिए, तो क्या है क्या ये? पहले आपको बताओ तो सही भाई कि विजन मिशन है क्या, तभी तो बनाएंगे। बोल दिया बहुत सारे लोगों से, मोटिवेशन में सुन लिया कि विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, लेकिन है क्या ये भी तो पता होना चाहिए। पता है किसी को? और देखो, यस प्लीज सर, अनम्यूट करिए, बताइए। विजन होता है कि हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल होता है यस, व्हाट वी विल अचीव आफ्टर लॉन्ग टाइम। मिशन Yes. होता है हम कैसे उस गोल को अचीव करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी टेक टुवर्ड्स अचीविंग दैट विल बी द मिशन। यस, मिशन। ओके, ग्रेट, सही कहा सर ने। सर के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे, सभी को ताली बजाना है सर के लिए। देखिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। सर ने जो चीज बोली वही चीज। मिशन क्या होता है? मिशन शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला। विजन क्या होता है? लॉन्ग, लॉन्ग। मिशन आपका चेंज हो सकता है, विजन आपका कभी चेंज नहीं होता है। मिशन जो है वो रास्ता है विजन तक पहुंचने का। क्या है? विजन तक पहुंचने का रास्ता है जो मिशन होता है। आया समझ में? जैसे मुझे 2025 तक 5 लाख रुपए कमाना है, ये मेरा मिशन है या विजन है? ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन नहीं है। बट मुझे 15 साल में 5,000 करोड़ की कंपनी बनाना है, ये मेरा विजन हो गया, ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, और उसके लिए जो रास्ते में बनाऊंगा, दिस इज अ मिशन। आया समझ में? अब ये मिशन और विजन होना क्यों जरूरी है लाइफ में? ये होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपके लाइफ का कोई मिशन रहेगा, अगर आपके लाइफ का कोई विजन रहेगा, तो ही आप लाइफ में कहीं पर जा पाएंगे, नहीं तो आप कहीं पर नहीं जा सकते। अभी मुझे बताइए यहां पे से कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ का कोई विजन और मिशन बना के रखा है? देखो ट्रू बोलेंगे कि सर ये मेरे लाइफ का विजन है, ये मिशन है। अपने देखो, मेरे से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से मत बोलना, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो हमेशा सही चीजों को लोगों के सामने डिफाइन करता है। और नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ है। वो कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। विजन भी बनाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्यों बनाए, कैसे बनाए, ठीक है, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो सारी चीजें हम आपको हमारे साथ जब आप जुड़ोगे ना 6 मंथ के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे सभी चीज। अभी मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम ने पहली बार जब SLV3 लॉन्च किया था, तो क्या ऐसे ही लॉन्च किया?
कि ऐसे ही लॉन्च किया? नहीं, ये उनका एक विजन था। उनके आपने एक उनका फोटो देखा होगा कि वो साइकिल के ऊपर उसको रॉकेट को लेकर जाते हैं, मिसाइल को लेकर जाते हैं। कितने लोगों ने देखा है वो फोटो साइकिल के ऊपर? यस। वहां से लेकर मोदी जी की गवर्नमेंट आने तक, उनको सहायता मिलने तक, मोदी जी की गवर्नमेंट या जो भी सरकार से उनको जो सहायता मिली है ना, जो सरकार से सहायता मिलने तक के उनका जो सफर था, उनको नहीं पता था कि गवर्नमेंट उनको सहायता करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने तो अपनी साइकिल उठाई और वो चल दिए। तो ये कौन कर सकता है? ये केवल एक विजनरी मैन कर सकता है। नॉर्मल पर्सन कर सकता है क्या? है ही नहीं, बस की बात ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर क्यों है? एक विजन है भैया, एक विजन था। सभी लोगों को उनकी सक्सेस जरूर दिख जाती है। उनके साथ में कितने लोगों ने शुरुआत करी, कितने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। अब बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो बोलते सर उनके ना उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। क्या बोलते? सर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। भैया किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत अच्छी नहीं थी। उनके साथ में लाखों बेस्टमैन थे, लाखों लोगों ने ट्रेनिंग करी। सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जाने की हिम्मत नहीं थी किसी की। वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के आए, ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत के आए। सुबह वो 3 बजे अपने घर पहुंचे, 3 बजे घर पहुंचे, 4 बजे वो क्रिकेट ग्राउंड में थे। इसी वजह से वो सचिन तेंदुलकर है। हर कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि विजन नहीं है ना भाई, इतना बड़ा डेडिकेशन है। तो वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आपका कोई मिशन होगा, कोई आपका विजन होगा बड़ा। और जब आप हमारे साथ में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई केवल ट्रेनर नहीं बनाना है, कोई पैसे कमाना नहीं केवल सिखा रहे हम कि भाई पैसे ही कमाना है। पैसे कमाना तो 10 चीजें है। आज इंटरनेट पे जाओ, 50 चीजें मिल जाएगी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है। क्यों नहीं कमा रहे लोग? क्योंकि कोई विजन ही नहीं है ना भैया लाइफ का। और जब तक विजन नहीं रहेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, आप कितना भी सीख लो। क्यों 1% लोग लाइफ में इतना ग्रो कर रहे, क्यों 99% नहीं कर रहे? 99% लोगों को पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे, बस चल रहे हैं, जॉब चल रही है, घर वालों फैमिली चल रही है, पता ही नहीं है कि कर क्या रहे वो लाइफ में। कोई विजन ही नहीं है। और मेरे साथ में भी यही था, मैम के साथ में भी यही था। जब तक नहीं पता था, जब तक चले जा रहे। लेकिन आज आप लोग यहाँ पर है, क्यों है? क्यों आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे? क्यों आप लोगों के साथ में 1-1 2-2 घंटा दे रहे? कि भाई एक मिशन है, एक विजन है कि आप लोगों की जिंदगी को बदलना है। और हमारे जैसे, जैसे आज मेरे साथ में मेरे जैसे लोग कनेक्ट हो पाते। जो लोग ऑलरेडी 10 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे, क्या वो कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। वो उनके जैसे लोगों से कनेक्ट हो पाते। आप मेम से कनेक्ट क्यों हो पाए? आप मेरे से कनेक्ट क्यों हो पाओगे? क्यों? क्योंकि आप मेरे जैसे लोग हो। आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मेम की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इसी वजह से आप लोग कनेक्टेड हो। तो हम लोग एक मिशन, एक विजन के साथ आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। और केवल ट्रेनर बनना ही कोई विजन विजन नहीं है। ये बन के आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हो, ये आपका विजन है भैया। अगर आप हेल्थ कोच बने, तो हेल्थ कोच बन के आपने कितने लोगों की जिंदगी को बदला। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, याद रखना। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा ही आएगा, आता ही आता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। आज नहीं कल आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 4 साल 5 साल बाद, लेकिन इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। लेकिन कुछ विजन होना चाहिए। और जहां पर आपका केवल एक ही विजन रहा कि केवल पैसा कमाना है, कैसे भी करके लोगों की जेब से निकाल लूं, कैसे भी करके लोगों को मेरा ट्रेनिंग भेज दूं, कैसे भी करके मैं इसको भेज दूं, तो वहां पर ज्यादा लंबे समय तक के सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर सरवाइव करना है लंबे समय तक के, तो लोगों की जिंदगी को बदलने का एक आपको डिसीजन लेना होगा। अपने घर वालों की जिंदगी को बदलने का डिसीजन लेना होगा। तब जाके आप जीवन में अच्छे लक्ष्य पा सकेंगे, अच्छे जगह पर पहुंच सकेंगे। सोचने का कितना पैसा लगता है?
कितना पैसा लगता है? 0 रुपीस, 0 रुपीस लगता है ना। अब मुझे वे यहां पर एक चीज बताएंगे, कितने लोग ऐसे जिन्होंने किसी भी एक पर्सन को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। मेघना जी, सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। यस सर, क्या करते हैं आप? नमस्कार। सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सिविल इंजीनियर है सर, ओके ग्रेट। अभी कितना अर्न कर रहे थे आप फिर भी? मंथली 50,000। 50,000, ओके। सो आपने ऐसा कुछ गोल बनाया होगा कि आपको इतना पैसा कमाना है? हाँ, बना है। कितना सर? मुझे एक एमएनसी बनाने का है। अच्छा, एमएनसी कंपनी आपका खुद का बनाना है आपको। हाँ, अच्छा, तो कितना पैसा आपने सोचा है उसके लिए? मेरा टर्नओवर ही 2,000 करोड़ टर्नओवर करने का है। अच्छा, 2000 करोड़ का आपको टर्नओवर करना है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, 2000 करोड़ का टर्नओवर करना है तो उसके पीछे आपका कौन कौन सी चीजें आपको करना है? कौन कौन सी चीजों को आपको करना है? क्या क्या आपके पास में सोर्सेस होना चाहिए जब आप 2000 करोड़ रुपए कर पाएंगे? मेरे को एक अच्छा नेटवर्क चाहिए। यस, नेटवर्क चाहिए। चलिए ग्रेट, आपके पास में है, आप सोच पाए। चलिए यहाँ पर और मैं किसी को करना चाहूंगा। आनंद जी, यस। यस आनंद सर, क्या करते हैं आनंद सर आप? अभी प्रेजेंट एसोसिएट जॉब करते हैं। अच्छा, ओके ग्रेट सर। तो अभी आपका मतलब कितना अर्न कर लेते हैं? अभी 12 to 15,000। अच्छा, 12 to 15,000, ग्रेट, कोई बात नहीं। आप कितना कमाना चाहते हैं? आपने कुछ गोल बनाया होगा, इतना पैसा मैं कमाना चाहता हूँ। मिनिमम 50,000 पर मंथ एट अच्छा, प्रेजेंट। 50,000, ठीक है। चलिए ग्रेट। अभी मुझे यहाँ पर सिंपल सा, मैंने आप लोगों से ये क्यों पूछा है ना, इसके पीछे का कुछ रीजन है। अब वो रीजन क्या है समझना। यहाँ पर सर से मैंने पूछा, उन्होंने बोला 50,000 पर मंथ। एक सर ने बोला 2000 करोड़ का इनको उनका टर्नओवर करना है। आनंद सर, क्या 2000 करोड़ का नहीं सोच सकते थे? भाई सोचने के लिए कोई पैसा लग रहा था? नहीं। लेकिन हम नहीं सोच पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी हमको वहां पर ले ही नहीं जा पाती, ठीक है। और वो कब होता है? जब आपका कोई बड़ा विजन ना हो। अभी जैसे सर ने बोला 2000 करोड़, अब इनका बड़ा विजन है, एमएनसी कंपनी, क्या है विजन है, दिख रहा है विजन। उनको पता है ये विजन को कंप्लीट करने के लिए 2000 करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा, तभी मैं उसे हिट कर पाऊंगा। अभी आनंद सर के दिमाग में क्या है? केवल 50,000 रुपए कैसे भी करके कमाऊं, 50,000 तक कैसे पहुंचू। तो उनको आइडिया कौन से आएंगे? 50,000 वाले। 1 लाख वाला आइडिया आएगा क्या? नहीं, क्योंकि माइंड सोच ही नहीं रहा है उतना, माइंड उतना आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। तो आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचो, बड़ा विजन बनाओ, और ये डेफिनेटली 101% ये पूरे होते हैं। चलिए थोड़ा लंबा चलेगा, सेशन चलेगा, अभी और थोड़ी सी स्लाइड बची है, चलेगा? ओके, चलिए ग्रेट। सेकेंड, इनोवेशन, इनोवेट। अब ये इनोवेट क्या है? इनोवेट है आपको आपके जीवन में नई नई चीजों का इनोवेशन करना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, नई नई चीजों को सीखना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चीजें चल रही है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे, आज आपको पता है एआई टूल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लैपटॉप सीखना, लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वही पुराने चीजों में बैठे हुए हैं, वो इनोवेट नहीं कर रहे, नया इनोवेशन कर ही नहीं रहे। और जब तक नया इनोवेशन नहीं करोगे, अभी ज्योति मैम है, ज्योति मैम बोलेगे सर मेरी तो एज हो गई है, मेरी 40 साल 30 साल की एज हो गई, 35 साल की एज हो गई सर, मैं अब क्या करूंगी सीख के, मैंने बचपन से नहीं सीखा सर, मेरे को नहीं आता। तो मैं आपको लाखों उदाहरण ऐसे बता दूंगा जिन्होंने बचपन से कुछ नहीं किया था, 60 साल की उम्र में मैकडोनल्ड को शुरू किया। 70 साल 65 साल की एक लेडी ने मैराथन को जीता। कुछ भी नामुमकिन नहीं है,
लेकिन हम उसको बना लेते हैं। अभी एक सबसे बेहतरीन बात बताऊं, देखो जो लोग जाना चाहते थे वो चले गए, लेकिन जो 25 लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है, सुन लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर इस चीज को समझ गए ना तो आज के बाद में पूरी तरीके से बदल जाओगे। ये एक ही पॉइंट से, केवल एक पॉइंट से। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो कितनी होती है? केवल 10%। कितनी कितनी ऐसे दिखाएंगे, कितनी ऐसे दिखाएंगे सभी लोग, कितनी? 10%। हम रिएक्ट कितना करते हैं पता है? 100%। कितना करते? 100%। अगर बॉस ने चिल्ला दिया, भैया 10% चिल्लाया है, 100 दिन तक के उसको लेके बैठा है दिमाग में, 100% रिएक्ट। भाई ने मम्मी ने चिल्ला दिया, कितना? 10%। शाम तक बेटी खाना ही नहीं खा रही, बेटा खाना ही नहीं खा रहा है, 2-2 3-3 दिन तक के खाना ही नहीं खाना है। आया समझ में? एक दिन कोई काम नहीं कर पाए, सुबह आप एक दिन लेट उठे, उतना समय खराब हुआ, 10% पूरा दिन का 90% खराब कर दिया। मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठी, वो चीजों को लेके बैठे। किसी की डेथ हो गई, कोई आपके बहुत ज्यादा करीबी थे, जो आपके बहुत ज्यादा खास थे, उस पर्सन की डेथ हो गई, डेथ हो चुकी भाई, वो आदमी जा चुका है, 10%। 90% रिएक्ट करके बैठे हुए, 20 साल तक के, 50 साल तक के। भैया वो व्यक्ति जा चुका है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, वो 90% है। न कि 90% वो है कि उसको याद करके रोते रहो, वो 90% नहीं है। 90% तो वो है कि 90% आप ऐसा कौन सा काम करो कि वो ऊपर से तारे के रूप में भी अगर आपको देखे ना तो वो गर्व करे कि यार इसने, मैं तो 10% चला गया लेकिन 90% इसने कुछ ऐसा काम करा जो मुझे वहां से खुशी हो रही है। आया समझ में? तो ये दिमाग में आज उतार लो कि केवल हमारे लाइफ में जो रिएक्शन होता है ना वो केवल 10% होता है और 90% हम रिएक्ट करते हैं। तो आज के बाद जो 10% होगा उसको 10% को भूल जाना है और 90% जिंदगी अच्छे तरीके से शुरू करना है, नए काम से शुरू करना है। सुबह का 10% टाइम खराब गया, 90% टाइम को अच्छा ये करना है। जीवन का 10% चले गया, 90% ऐसा जीना है कि यार आप तो जिंदगी में कुछ करके बताना है। 10% कुछ नहीं सीखा, 90% अब सीख के बताऊंगा, 90% अब जिंदगी को बदल के बताऊंगा। 10% जिंदगी निकल गई, 90% जो जिंदगी बची है उसमें तो कुछ बड़ा करके बताऊंगी, उसमें तो कुछ बड़ा करके बताऊंगा। ये आज अपने खुद के साथ में एक कमिटमेंट ले लो कि ओवर रिएक्ट आज के बाद में नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। कोई जिंदगी में कोई चले गया, बहुत खास पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, वो चले गया, ठीक है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन से काम पे लग जाना। एक लेडीज एथलीट, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक दिन मतलब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, दूसरे दिन वो लेडीज ग्राउंड पे थी, तभी वो एथलीट में चैंपियन बन पाई थी। पता है? विराट कोहली, उनके पापा जी एक्सपायर हो गए थे, वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनको खबर आई पापा एक्सपायर हो गए। पापा का सपना क्या था? मैं तेरा पहला हैट्रिक देखना चाहता हूं। उसी समय फर्स्ट हैट्रिक मारा था उन्होंने, फर्स्ट सेंचुरी उन्होंने वहां पर मारी थी। इसी वजह से वो विराट कोहली है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में 10% को 10% रखते और 90% को 90% पे ले जाते। तो आज के बाद अपनी जिंदगी में कितने लोग ऐसे कि सर ये 10% है ना, आज के बाद मैं 10 ही रहने दूंगा, इसको 90 पे नहीं ले जाऊंगा या 90 पे नहीं ले जाऊंगी। कितने लोग ऐसा? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए तो अगला हमारा है सेकेंड पॉइंट, हमारा कवर अप। थर्ड पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफाई।
अब डाइवर्सिफाई क्या होता है? डाइवर्सिफाई, इसको मैं दो भागों में बांटता हूं। एक होता है लीन बैकवर्ड और एक होता है लीन फॉरवर्ड। अब ये लीन बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड क्या है? लीन बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड है क्या? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है क्या? डाइवर्सिफाई क्या है? डाइवर्सिफाई क्या है? आज आप जिस जगह पर हो ना, वहां से भैया रास्ते बना लो। कोरोना ने आपको सिखा दिया, रास्ते बना लो। अगर आप एक ट्रेनर बन रहे ना, आप एक ट्रेनर बन रहे, तो ट्रेनर बनने के बाद भाई मैं अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करके कैसे रख सकता हूँ? फर्स्ट इनकम 1-to-1 कैसे करवा सकता हूँ? सेकेंड इनकम अपनी किताब कैसे लिख सकता हूँ? थर्ड इनकम अपने लिए टीम से कैसे काम करवा सकता हूँ? फोर्थ इनकम। आपके लिए डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दो। अगर एक ही चीज में बने रहोगे ना, कि अभी तो सर सोच ले कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूं, आगे ऐसा रिसेक्शन इस इंडस्ट्री के अंदर जो कोरोना में आया था कि कहीं जा ही नहीं सकते, उस समय क्या करोगे? तो लीन बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड हमेशा आपकी लाइफ में होना चाहिए, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको वो चीज देती है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको वो चीज देती है कि आप लीन बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड अपनी लाइफ में खड़े कर सकते हो। अब बताओ कैसे? कैसे? भैया मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं खुद का, मैं वहां से पैसा कमा रहा हूं, मैम के साथ में काम कर रहा हूं, यहां से पैसा कमा रहा हूं, सुबह मॉर्निंग रिचुअल का क्लब कर रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं, नाइट रिचुअल्स का क्लब कर रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं, 1-to-1 का सेशन ले रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं, कोर्स को सेल कर रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं, जहां पे जॉब कर रहा हूं वहां पे कोर्सेज का सेलिंग कर रहा हूं, वहां से पैसा कमा रहा हूं। रास्ते खोल दिए। क्या कर दिए? रास्ते खोल दिए। जैसे होता है ना, कंपनी के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं पता है आपको? सबसे पहला लेबर। लेबर क्या करता है? खुद काम करता है। हम पहले लेबर की स्थिति में थे, है ना, लेबर के लेवल पे थे। लेबर लेबर से फिर कहा गया मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? काम बताता है, काम बताता है, काम करवाता है। उसके बाद में, मैनेजर के बाद में आपने क्या सोचा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना चाहिए, तो आपने क्या किया? आपका खुद का स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन वहां पर आप क्या कर रहे? सिंगल आर्मी है वहां पे। आप क्या है? सिंगल आर्मी। मतलब ट्रेनिंग भी आप दे रहे, कंपनी को भी आप संभाल रहे, एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग आप दे रहे, मैनेजमेंट भी आप संभाल रहे, सब कुछ आप संभाल रहे। फिर आता है आपका उसके ऊपर का लेवल, ऑनर वाला, जहां पर आप कुछ लोगों को रख लेते, उनके अंदर ये चीजों को डाल देते। फिर उससे ऊपर वाला लेवल आता है स्केल अप लेवल। वहां पर क्या करते हैं? आप ऐसे सोर्सेस को खोल देते कि आप अगर है तो भी आपका घर चल रहा है, आप अगर नहीं है तो भी आपका घर अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको वो चीज देता है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में वो रास्ते आप आपके खोल लेते हो। ठीक है, ये इंडस्ट्री आपको वो चीज देना शुरू कर देता है। एंड फोर्थ, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में जिसे मानता हूं, एडॉप्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सीख जाओ। जो भी टेक्नोलॉजी आज आ रही है उसको सीख जाओ। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को सीखना पसंद नहीं करते। अब टेक्नोलॉजी क्या? टेक्नोलॉजी भी एआई नहीं, बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया एआई। क्या? यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना। सर मैंने कभी नहीं बनाया, सर मैं तो कभी बना नहीं सकती, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते, मेरी वाइफ मेरे तरफ देखती है, मेरे घर के बच्चे मेरे तरफ देखते हैं। कुछ नहीं होता भाई, देखने दो। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, जब आपकी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिक बोलेगी मुझे तो विश्वास था अपने बच्चे के ऊपर, मुझे तो विश्वास था अपनी वाइफ के ऊपर। इंस्टाग्राम, फेसबुक शुरू कर दो भाई, कंटेंट डालना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो, इसके ऊपर अच्छी अच्छी चीजें डालना। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना सीख लो, शुरू कर दो। अगर टेक्नोलॉजी को नहीं एडॉप्ट करोगे तो पीछे चले जाओगे 10 साल। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, जिसने
मैम की जिंदगी को चेंज किया, जिसने मेरी जिंदगी को चेंज किया, जिसने दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी लोगों की जिंदगी को चेंज किया, वो है मेंटोरशिप। मतलब आपके जीवन में एक गुरु ऐसा जरूर बना जो हर समय आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस दे सके। अब मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर क्यों है पता है? क्यों है? अपने गुरु के कारण। आज कृष्ण जी को कितने लोग मानते हैं? कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी है ना अभी, कितने लोग मानते हैं? अच्छा, सभी लोग मानते हैं। तो मुझे बताइए, कृष्ण भगवान इतने आगे कैसे जा पाए? उनके गुरु कौन थे पता है आपको? उनके भी गुरु थे। अब बोलोगे क्या पता सर, ये तो पता ही नहीं था हमको कभी कि उनके भी गुरु है। कृष्ण जी के भी गुरु थे। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? गुरु सांदीपनि का नाम सुना है? गुरु सांदीपनि, गुरु सांदीपनि का नाम सुना है? सर्च करना, कृष्ण भगवान के गुरु थे। समझ में आया? हनुमान जी की वे उनके गुरु थे। सचिन तेंदुलकर उनके गुरु थे। आज मुझे एक भी पर्सन ऐसा बता दो जो बिना गुरु के सक्सेस हो पाए। भाई कुछ के विजुअल थे, कुछ के अनविजुअल थे, लेकिन गुरु सभी के थे। बिना मेंटोर के आप जिंदगी में कभी भी एक अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकते। तो आप अपने आप से आज एक चीज पूछो कि आपने किसे अपने जीवन का गुरु बनाया? क्या आपकी लाइफ में अभी कोई मेंटोर है? भाई मेरी लाइफ में तो है, बहुत सारे गुरु है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं। आपके सामने आपकी मैम है, बनाइए उनको, करिए उनको फॉलो, फिर देखिए किस तरीके से लाइफ को चेंज होती है। अगर जब तक आप मेंटोर आपकी लाइफ में नहीं बनाओगे, लाइफ में ग्रोथ आपको जितने हो उतने बन के तो रहोगे, वो कोई डाउट नहीं। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन अच्छा ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर जीवन में चाहते हो ना, तो एक मेंटोर, एक गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। ज्योति मैम गुरु तो बनाना पड़ेगा, वो भी लंबे समय के लिए। मेघना मैम गुरु तो बनाना पड़ेगा सभी लोगों को। प्रीति मैम, प्रीति सर, गुरु तो बनाना पड़ेगा। चलिए अभी सभी लोग यहाँ पर कैमरा ऑन कर लेंगे, तो सभी लोग मुझसे यहाँ पर, यस सचिन जी ने ऑन किया, ऑफ कर लिया। चलिए सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सो आप लोगों के आज का ये सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर सेशन, मेरा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर अप किया, ठीक है। और डेफिनेटली मैं आप ये तो समझता हूं कि इसमें से अगर आपने एक चीज को भी समझ लिया, अगर अपने जीवन में उतार लिया ना, तो आज के बाद में आपके अंदर एक अलग बदलाव आ जाएगा, और डेफिनेटली आ जाएगा। आप में से अब बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, सभी लोग कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए। फटाफट 5 मिनट का समय रहेगा, 5 से 10 मिनट में हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कैमरा को अपने ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी मुझे यहाँ पर बताएंगे आनंद जी ने, चलिए थैंक यू वेरी मच आनंद जी, ऑन किया आपने कैमरा। चलिए सभी लोग ऑन कर लीजिए, जिसने ऑन किया भगवान उसका भला करे, जिन्होंने नहीं किया उसका भी भला करे, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए यस सर प्लीज, अगर आप लोगों से सबसे पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी मेम का जो मेन प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो मेम के साथ में जुड़ चुके हैं, और कितने लोग ऐसे जो सोच रहे कि मुझे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, या जुड़ने का सोच रहे? कितने लोग ऐसे, सबसे पहले वो बताएंगे कि सर हम मैम के साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैंड रेस करेंगे अपना, या यस टाइप करके यहाँ पर मुझे बताएंगे कितने लोग ऐसे जो मैम के साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यस रंजना मैम जुड़ चुके हैं,
ओके, थैंक यू वेरी मच आनंद सर। ओके ग्रेट, थैंक यू। और कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके? प्रीति मालिश सर, आप जुड़ चुके हैं मैम के साथ? अच्छा, आप जुड़ने वाले, चलिए ग्रेट। और कौन है यहाँ पर? यस, आनंद जी ज्वाइन होना चाहते हैं, ओके ग्रेट, बिल्कुल होइए सर। और कौन है यहाँ पे? मेघना जी, आप है मैम के साथ? अभी है या नहीं है? ज्योति मैम, यस, सचिन सर भी जुड़ना चाहते हैं, ओके ग्रेट। और ज्योति मैम, आप है, जुड़े हैं मैम के साथ या जुड़ना चाहते हैं? यस, माहेश्वरी जी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, यस ग्रेट। और कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं? आई विल ज्वाइन ऑन मंडे, ओके प्रीति मैम मंडे को ज्वाइन होने वाले, चलिए ग्रेट। ज्योति मैम जुड़े हैं मैम के साथ, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो, 1-2 दिन के, जो 1 महीने के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैम का 6 महीने का प्रोग्राम है, जो 3 महीने का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि वहां पर केवल मैम अकेले नहीं है, वहां पर आपके साथ में एक रॉकेट भी है, ठीक है? एक रॉकेट भी है जो आपको समय समय पे आके आपको एक अलग एनर्जी देने वाला है, ठीक है? वहां पर मैं भी हूं आपके साथ में, जो आके आपको समय समय पे एक बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी आपको देके जाऊंगा, आपको काम करने में हेल्प करूंगा। यस, बाकी लोग मुझे ऐसा लग रहा है सो गए हैं, कुछ ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। मैग्ना मैम दिखते हैं मुझे, और कुछ थोड़े बहुत लोग, सचिन सर है एक्टिव, माहेश्वरी मैम एक्टिव दिखते हैं, प्रीति मैम एक्टिव दिखते हैं, ज्योति मैम दिखते हैं। बाकी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए रिलैक्स, चलिए ग्रेट। और अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं डिसीजन लिया है तो आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने का। क्या? ये इंडस्ट्री के अंदर गोल्डन चांस है ग्रो करने का। सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, और 1 मिनट में आपको कुछ डेटा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, कुछ डेटा आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा जिससे आप समझ पाओगे। ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने, क्योंकि देखो मुझे याद है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो आपको उतना वो नहीं होगा, लेकिन आप अगर उसे खुद अपनी आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आंकड़े क्या है भाई, ये आंकड़े है क्या। देखो आंकड़े यहां पर देखना, ट्रेनिंग एंड कोचिंग जो इंडस्ट्री है, ये 2025 तक कितने 35 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। कितनी? 35 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने जा रही है। और ये तो केवल एक ही आंकड़ा बताया, अभी देखो आपको बहुत बड़े चौंकाने वाले आंकड़े मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, कि आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये इंडस्ट्री क्या होने वाली है, कि इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या होने वाली है। कोई भी इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही है। 91.7 बिलियन यूएस थी कब? 2018 में। 117 बिलियन डॉलर हुई कब? 2020 में, ठीक है? लेकिन अभी देखो ये इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखिए आप, 3.5 बिलियन। ये इंडस्ट्री हर साल बढ़ रही है, हर साल ये बढ़ रही है इंडस्ट्री। क्यों बढ़ रही है पता है आपको? क्यों बढ़ रही है इंडस्ट्री? क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर 80% रिजल्ट है, बाकी कोई इंडस्ट्री के अंदर 80% रिजल्ट है ही नहीं। अगर किसी को इंजीनियर बनना है ना, 20% बन रहे, 80% नहीं बन रहे। किसी को बिजनेसमैन बनना है, 5 साल के अंदर 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं, 5% बिजनेस सक्सेस होते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री का रेशो है, 80% लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर उतरे,
100% लोग इस इंडस्ट्री में उतरे, 80% लोग ट्रेनर बन चुके, 80% लोगों ने पैसा कमा लिया, जितना पैसा लगा उससे कई गुना ज्यादा कमा लिया। ये इंडस्ट्री का रेशो है। इस वजह से इंडस्ट्री इतने तेजी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया के अंदर ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसको करते रहिए, लेकिन ये आपके लिए गोल्डन चांस है इस इंडस्ट्री के अंदर उतरने का। और मैं आपको लिख के दे देता हूं कि इंडस्ट्री में आज अगर आप उतर गए ना, तो 5 साल बाद आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, 5 साल बाद अगर आप इंडस्ट्री के अंदर रहे, ये इंडस्ट्री के अंदर, तो 5 से 10 साल के बाद आप जितना पैसा कमाओगे ना, उतना आप डॉक्टर इंजीनियर बन के 50 साल में भी नहीं कमा पाओगे, जितना केवल 10 साल के अंदर इस इंडस्ट्री से कमाओगे। अभी जिस पर्सन की मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया था ना, पता है, सिर्फ कितने 12 साल के अंदर उन्होंने उस समय इंडस्ट्री को समझा था, जब तो कुछ भी नहीं, कोई लोग जानते भी नहीं थे, बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने समझा था 12 साल के अंदर उन्होंने कितना 500 करोड़, कितना 500 करोड़ कमाए है इस इंडस्ट्री से। सोच के देखो, आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 12 साल के अंदर 500 करोड़ किसको बोलते हैं? आज हम सोच भी नहीं पाते, हमारा दिमाग भी नहीं चलेगा यार इतना। तो ये इंडस्ट्री आपको क्या देगी आपको पता नहीं। एक लग्जरियस लाइफ आपको दे सकती है, जीवन में जो चीज चाहे, जैसा रहना चाहे वैसी जिंदगी आपको दे सकती है। और केवल आपको ही नहीं, आपके कारण हजारों लोगों की जिंदगी आप बदलोगे, हजारों लोगों की जिंदगी को आप चेंज करोगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप में से किसी भी लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए जितने लोगों को जाना था, जितने लोगों ने सुनना था चले गए, अब 15-16 लोग यहाँ पर है। मतलब ये रियल पर्सन है जो अपनी जिंदगी के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर हर कोई क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई 4 बजे तक नहीं उठ सकते ना। 30 लोग थे, 30 लोग नहीं रुक सकते ना 2-2.5 घंटा, क्योंकि पेशेंस नहीं है, सीखने का जुनून नहीं है। हम क्यों रात में 2-2 बजे तक के, 1-1 बजे तक के काम करते और वापस सुबह 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के ट्रेनिंग देते? क्यों? एक विजन है, एक मिशन है। और जब जुनून आपके अंदर ये आ जाएगा ना, देखना 10 साल बाद में, मुझे तो पता है कि मेरी लाइफ पूरी बदलने वाली है, मुझे पता है श्रीदेवी मैम की लाइफ बदलने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको आपकी लाइफ बदलना है या नहीं? क्या आपकी लाइफ बदलेगी? और डेफिनेटली जिस दिन आप मैम के साथ में जुड़ोगे, 6 महीने अगर कंटिन्यू रहोगे, 6 महीने के बाद आगे आप मैम के साथ में कंटिन्यू रहोगे, डेफिनेटली लाइफ चेंज होने ही वाली है। 101%, कोई भी 1% भी वो नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। अब आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई क्वेश्चन है? कुछ भी हो, कैमरा ऑन करिए और पूछिए मुझसे, कोई भी क्वेश्चन हो, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैम के साथ जुड़ने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर मैं ट्रेनर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, सर मैं बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ, सर मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरी ये चैलेंजेस है, सर मेरे पास अभी ये पैसा नहीं है, तो क्या मैं ट्रेनर बन सकती हूँ? क्या मैं कोच बन सकती हूँ? क्या मैं सर बन सकता हूँ? कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, फटाफट पूछिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जितना समय दे रहा हूं ना, इतने समय का ही एक पर्सन से 5,000 10,000 रुपए चार्ज करता हूँ। अगर एक पर्सन को 1-to-1 दे रहा हूं ना, तो 1-to-1 का 5,000 रुपए तो जरूर चार्ज कर लूंगा इतने समय। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपके दिमाग में कोई चल रहा हो कि सर मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, मैं मैम के साथ जुड़ना चाहता हूँ, या मैं मैम के साथ जुड़ना चाहती हूँ, तो क्या मैं जुड़ सकती हूँ? क्या मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ सर? हाँ, यस सर, प्लीज। प्रीति माले सर, प्लीज। हाँ सर, पूछिए। हेलो सर, हाँ, मैं टाटा कंपनी में काम किया, शेवरले में काम किया और होंडा 4 व्हीलर में काम किया। क्या बात है, ग्रेट। हाँ सर, एक्चुअली आई एम टेकिंग केयर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओ ग्रेट सर। सर एक आपको एक न्यूज सुनाऊं, सबसे अच्छी न्यूज, यस। अभी आप चौंक जाएंगे। इंडिया में सबसे हाई सबसे हाई जो
अर्निंग स्किल है जो सबसे हाई आज है, वो दो है, सेल्स एंड मार्केटिंग। लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते, मार्केटिंग करना नहीं आता है, मार्केटिंग तो कर लेते, बेचना नहीं आता है। और आपके पास में ये दोनों इंडस्ट्री, इसका नॉलेज है सर। आप इस इंडस्ट्री में आ गए ना, तो मैं बताऊं, आप जो धूम मचाने वाले हैं ना, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जिसके पास में दोनों नॉलेज है। सेल्स का नॉलेज है तो मार्केटिंग का नहीं है, मार्केटिंग का है तो सेल्स का नहीं है। अभी कल ही मैंने एक मैम को ट्रेनिंग दिया, वो सेल्स की मास्टर है। मास्टर मीन्स उन्होंने अक्षय कुमार जी, उन्होंने प्रीति जिंटा जी, उन्होंने सुनील शेट्टी जी, इनकी कंपनी में इनके लोगों को ट्रेनिंग दी है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी है सेल्स की। वो मैम को मैंने कल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी। उनसे ऐसी एक इसमें मुलाकात हुई कि मुझे एक्चुअली सीखने का बहुत ही आता है, तो मैंने उनके एक प्रोग्राम में गया, मैंने सोचा यार सेल्स में उनसे सीखो, और फिर मैंने सोचा कि मैम से एक बार मैं बात करूं। जब मैंने बात किया तो उनका जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल जीरो, मार्केटिंग कोई और संभालता है, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कोई और संभालता है, उनको उसका नॉलेज ही नहीं है। उनको उसके ऊपर मैंने कल ट्रेनिंग दिया। बोले सर मैं इस इंडस्ट्री में तो मेरा इतना बड़ा नाम है, और उनका पता है 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं मैम, केवल 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, और 2 दिन का 10,000 रुपये चार्ज है। 2 दिन का 10,000 रुपये उनका चार्ज है। तो सोच के देखिए सर, जब वो एक स्किल होने के बाद में 2 दिन का 10,000 रुपये कमा सकते हैं, तो आपके पास तो दोनों है। नहीं सर, मैं अभी जॉब करता था 2018 तक। ओके उसके बाद मैं मल्टीपल इनकम के सोच के एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ओके अभी 10 एकड़ मेरा ग्रेप्स है, ओके, प्लांटेशन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 3 साल से इनकम आ रहा है उसका। So again, I got offer in Hyundai and Kia as a in dealership general manager. अच्छा अच्छा, So I'm joining there. So that's why I came to Mysore here. बिल्कुल ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी आई एम हैंडलिंग दैट डिपार्टमेंट एंड आई एम गिविंग ट्रेनिंग टू ऑल माय सेल्स डिपार्टमेंट एंड ओके, शोरूम टीम मेंबर्स ऑल। यस अभी सर ये क्यों ये गलत हो रहा है हमारे इंडिया में बोले तो, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है ना सर, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा बना रहे बच्चों को। उन लोगों को क्या अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उनको टाइम नहीं दे रहा है। वो सर सुबह, देखिए, अभी एक हाँ सबसे अच्छी चीज है हाँ, कि वो इसलिए मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 2 ट्रेनिंग दे चुका हूँ सर, और ओके, शुगर फैक्ट्री में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। यस मेरा ट्रेनिंग स्किल्स है, और कहाँ क्या देना है वो भी पता है, और ग्रेट मेरा 1 घंटे का चार्ज है 10,000 रुपए ट्रेनिंग ग्रेट, देने बहुत बढ़िया। का। वी तो आर आप चार्ज ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं? प्रैक्टिकल सर, फिजिकल। फिजिकल। कितना देर आपका, अगर 1 दिन का ट्रेनिंग देना है तो कितना समय जाता है? सर मैं 1 घंटे का लेता हूँ, 1 दिन का नहीं लेता। 1 घंटे का मतलब, मैंने माना अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक है। अभी अगर अगर आपको बेंगलोर में ट्रेनिंग देने के लिए जाना है, हाँ सर। तो आपका कितना समय जाएगा? 1 घंटे का ट्रेनिंग देना है केवल आपको, आपने हाँ सर। वहां पे चार्ज किया, आपका केवल 1 घंटे का ट्रेनिंग का 25,000 30,000 रुपये मैंने मान लिया, हाँ सर। केवल 1 घंटे का। हाँ सर। आपका कितना समय जाएगा बेंगलोर आने जाने में? सर 1 दिन पूरा जाएगा वो। पूरा जाएगा। कितना किया आपने? मैं बेंगलुरु में नहीं किया सर, यहाँ हमारा नॉर्थ कर्नाटक में कर रहा हूँ, यस, क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट है, वो ढूंढ सभी के जगह सर, केवल हाँ कर्नाटक में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओनर लोगों को और एचएम लोगों को कन्विंस किया मैं क्या क्या चीज में ट्रेनिंग चाहिए बच्चों को, यस इसलिए दे आर इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेनिंग। यस मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मुझे ये पता है सर, किस कोई नहीं हाँ, कोई नहीं, आप एक बार मैम के साथ जुड़िए, कंटेंट की आपके पास में मैं लाइन लगा दूंगा। सर आप ये बोलोगे कब मैं सोचा उसी दिन मैडम के साथ कांटेक्ट हुआ, अच्छा, शायद ये रब ने कनेक्ट कर दिया हमको। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये एक्चुअली ये सारी जो, देखिए हम तो क्या है, एक बार आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आते हो तो आप स्पिरिचुअल बन जाते हो। स्पिरिचुअल मींस आप समझने लग जाते हो कि क्या होता है। एसबीआई में ट्रेनर जॉब के लिए ऑफर किया सर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। दे ग्रेट, ऑफर्ड बहुत बढ़िया, बहुत मंथली बढ़िया। वन और वन वो वन करने लाख के साथ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो करने के साथ आप केवल ऑनलाइन में 1 घंटे का भी ट्रेनिंग दोगे ना, तो अभी तो नहीं, आप मैम के साथ बने रहिए, 6 महीने ट्रेनिंग लीजिए, 1 साल 2 साल के बाद एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आएगा कि जहां पर आप 10,000 रुपए ले रहे हैं ना, वो 1 घंटा आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए देगा।
लिख के रख लीजिए, अभी जितने लोग हैं यहाँ पे लिख के रख लीजिए। 1 घंटा, वो 1 घंटा आपको 2 से 5 लाख रुपए देगा 1 घंटे का। वो समय आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी स्किल है, आपके पास में नॉलेज है, लेकिन अभी आपको जरूरत है ऐसे मेंटोर की, ऐसे गुरु की, जो आपको कंटेंट आपको बता सके कि आपको 5 लाख के लिए कौन सी चीजें करना है, 2 लाख के लिए कौन सी चीजें करना है, 10,000 के लिए कौन सी चीजें करना है। भाई दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आज अगर हमको अगर होंडा की कार खरीदना मैं है ये सीखा कि जी, अगर होंडा ये की कार रिलायंस में सीखा सर। ओके रिलायंस कंपनी में ये सीखा कि हम ओके किस ग्रुप पे ज्वाइन होता है, हम ऐसा ही धीरू भाई अंबानी ने बताया सर। वो कब पेट्रोलियम इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, एक्चुअली जी जी वो उसका डेली सैलरी था 500। यस वो ताज होटल में चाय पीने को जाता था, 150 रुपए का बिल्कुल चाय ताज होटल में जाता था। और बिल्कुल सप्लायर ने पूछा उसको, यहाँ क्यों आ रहा है तो चाय पीने को, सैलरी कम है। वो उन्होंने बताया, मैं चाय के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ, यहाँ वक्त बिताने को पैसा दे रहा हूँ बोला। वक्त क्योंकि भी लोग क्यों यहाँ बिता रहे हैं, वक्त भी क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि वहाँ का कस्टमर्स है ना सर, उनका बात सुनने के लिए पैसा देता हूँ, यस ये तेरा ग्रेट, चाय का नहीं है बोल के बोला था। बिल्कुल। वहां पे क्यों इसलिए जाते ये थे? ग्रुप ज्वाइन होने के लिए हाँ, इसलिए ये ग्रुप ज्वाइन होने के लिए मैं डिसाइड किया था सर, क्योंकि ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक ही। थैंक चलिए ग्रेट, सभी लोग सर के लिए एक बार क्लैप करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है सर, और डेफिनेटली पूरी तरीके से हम आपके साथ मैम है, तो आपसे भी बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी, आपको भी यहाँ पर बहुत सारा जो आपकी जो ख्वाहिश लेकर आ रहे हो, जो चीजें लेकर आ रहे हो, उसके ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। और कंटेंट कंटेंट ज्यादा समय नहीं, जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, केवल और केवल 1 महीने के अंदर आपको कंटेंट की बाढ़ ला दूंगा मैं आपके पास, कंटेंट की बाढ़ ला दूंगा 1 महीने के अंदर, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। यस, और एंड किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी ज्वाइन किया सर। सब कुछ डिजिटल सर, सब कुछ यहाँ पे देखो, मार्केटिंग हमने कोर्स। मैम ने डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वो कवर अप करने वाले, डिजिटल चीजें मैं कवर अप करने वाला हूँ, सेल्स से रिलेटेड चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेल्स में आपने बहुत सारी चीजें, आपका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप मेरा सेल्स देखेंगे तो वहां पर आपको और बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने के लिए, भले ही मेरी एज बहुत कम है ना, लेकिन बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी चीजों को नॉलेज एक्वायर किया, बहुत सारी चीजों को सीखा। ठीक है, और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली सीखता हूँ। तो वो एक अलग लेवल का आपको सेल्स के अंदर एंड मार्केटिंग के अंदर भी आपको एक अलग लेवल का वो मिलेगा। ठीक है, चलिए ग्रेट, थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए, थैंक यू। चलिए, और कोई है जिसका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है? देखिए भैया, चांस है, पूछ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा मेरे साथ में इतना बात करने का। ठीक है, आप फोन भी कर, अगर नंबर भी होगा फोन भी करोगे तो मैं फोन बहुत कम उठाता हूँ, फोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, तो ये समय है, पूछ लो जो पूछना है। मैम के साथ में आपका मतलब एक मैम की कम्युनिटी में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो। यस मैम, पूछिए, अनम्यूट किया आपको। यस मैम। हेलो सर, नमस्ते। यस, नमस्कार। सर मुझे ये पूछना है कि मैं अब तक ना इतना बड़ा सोच कभी नहीं रखी सर, मैं कर पाती हूँ क्या, ये मुझे डर लगता है। नहीं देखिए, अभी तक आपने नई सोच रखी थी, कोई बात हाँ नहीं। सर। मैम के साथ में जुड़ने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया क्या आपको? हाँ आया सर, इसलिए ज्वाइन हुआ। हुआ ना? ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कॉन्फिडेंस तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत है। अभी तो गुब्बारा जो है ना, अभी तो गुब्बारे में हवा भरी गई है, अभी गुब्बारे को आसमान में उड़ाना बचा है। ओके। ठीक है, तो अब वो आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप पूरी तरीके से सौंप दो। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनके पास में नॉलेज होता है, स्किल होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और अगर कोई पर्सन उनको सिखाता है तो वो बोलते हैं यार मैंने तो सब कुछ सीखा हुआ है, मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है। एक पर्सन वो होता है जो जिनके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, सब कुछ सीखा हुआ है, लेकिन वो हम्बल होता है। वो जब भी कहीं पे सीखने के लिए जाता है, वो ये सोच के जाता है, अपने पूरे दिमाग को खाली करके जाता है, ये सोच के जाता है कि मैं यहां से जो भी सीख मुझे मिलेगी वो मेरी जिंदगी की नई सीख होगी। ओके।
तो आपको ये समझ के आना है, जो भी एक्सपीरियंस आपका है नहीं है, नॉलेज है नहीं है, बिल्कुल जीरो, दिमाग को पूरा खाली करके आना है। क्योंकि जो बोलते हैं ना, अगर आपके पास में मटका है, घर का जो बर्तन है ना, अगर वो भरा रहेगा ना, उसके अंदर अगर पानी भरा है, थोड़ा सा खाली है ना, तो हम थोड़ा बहुत डाल पाएंगे। अगर ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो बाहर झलक जाएगा। सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो पानी है, वो ऊपर के पानी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वो होता है एरोगेंस, वो होता है आपका खुद के ऊपर ज्यादा ये करना कि यार मेरे पास तो ये नॉलेज है, ये मेरे पास तो ये है। और एक मटका, एक जो बर्तन है जो पूरी तरीके से खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बोलेगा डालो मेरे अंदर कितना पानी डालना है, सही है। उसको हम पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो वैसे ही आपको जब आप यहाँ पे आओगे, पूरी तरीके से खाली होके आना है, और आपको किस तरीके से क्या लेवल पे ले जाना है। क्योंकि आज हम मैम और हम ये लेवल पे, तो हमको पता है ये लेवल पे हम कैसे पहुंचे, ग्राउंड लेवल से। और सबसे अच्छी बात कि आप जो लोगों के साथ सीख रहे हैं ना, वो ग्राउंड लेवल के व्यक्ति है, जो ग्राउंड लेवल से, ये सब्जी बेचने से लेके यहाँ तक मैं कैसे उठा, तो मुझे पता है कि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, गरीब पर्सन होता है, उसकी जिंदगी में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के बाद उसको क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उस प्रॉब्लम से वो कैसे निकल सकता है ना। तो ग्राउंड लेवल से आपको चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल ये चिंता छोड़ दो, कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल अब ये दिमाग में ले लो कि मैंने सौंप दिया है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, बस। ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन था, किसी ने ये किया था, हैंड रेज करिए, किसी ने डाला था और कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आनंद सर, यस आनंद सर प्लीज। हाँ आनंद सर, यस सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपको ऑप्शन दिया है। क्या हो आनंद सर, हो कर पा रहे हैं अनम्यूट? यस अनम्यूट करिए। यस आपको ऑप्शन दिया है, देखिए आपके पास में एक बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए बस। यस आनंद सर आपके पास में आ रहा होगा। आनंद सर कैमरा ऑन कर लीजिए 2 मिनट। एक्चुअली 2 आनंद है ना, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने दूसरे आनंद सर को ऑप्शन दिया। यस हाँ सर। सर अभी प्रेजेंट क्या हो रहा, मतलब मेरा जॉब 12 और 9.5 आवर्स चल रहा, ओके तो उसमें टोटल ट्रैवलिंग टाइम हो जाके 13 to 14 आवर जा रहा। ओके तो टाइम मैनेज करने में, मेडिटेशन करने में जो मैडम बोले ना, हाँ सो वो करने मुझे मतलब नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा, नहीं मैं नहीं बोल सकता, मगर एक दिन हो रहा, एक दिन नहीं हो रहा, एक दिन हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा। सो अल्टरनेट डेज में हो रहा। ओके सो इसकी वजह से प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा मेरा। यस। चलिए कोई नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने बोला था। अभी आप कैमरा ऑन करिए 2 मिनट, तो मैं आपसे बात करता हूँ 2 मिनट। मैं थोड़ा बाहर हूँ सर, रेन आ रहा है इधर, इसलिए ऑन अच्छा नहीं कर अच्छा अच्छा, रहा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी फॉर तो दैट। आनंद सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ बोलो सर। आप मुझे घर में मम्मी है? अभी मैं रूम पे रहता हूँ सर। नहीं नहीं, मम्मी पापा घर में मतलब है ना? हाँ अभी सिस्टर के पास, हाँ अच्छा अभी। सिस्टर है आपके, चलिए हाँ ठीक है। सिस्टर क्या करते हैं आपके? अभी सिस्टर टीचिंग करते, टीचर है। टीचर है, ओके। अभी कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं वो? अभी प्राइमरी 1 to 5। प्राइमरी को। अभी समझिए, प्राइमरी को वो पढ़ाते हैं। अभी आपकी सिस्टर प्राइमरी को पढ़ाते हैं, मैंने मान लीजिए 5th क्लास को या 6th क्लास को ये पढ़ाते हैं, है ना? या फोर्थ क्लास को पढ़ाते हैं या 3 क्लास को पढ़ाते हैं। हाँ अभी आपकी टीचर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और आपके टीचर को अगर बोल दिया गया यस मतलब उनके प्रिंसिपल के द्वारा, उनके ओनर के द्वारा, कि आपको 5 दिन के अंदर ये एक बुक में हम आपको दे रहे हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी हालत में 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। हाँ ठीक है, आप समझना। लेकिन आपकी दीदी के पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, बेचारी सुबह उठती है, खाना बनाती है, वहां से अपने टीचिंग करने जाती है, वहां से लेट नाइट आती है, फिर खाना बनाती है, फिर उसके बाद में सो जाती है, उसके पास में टाइम ही नहीं है। यस लेकिन उसे पता है
कि अगर 5 दिन में उसने ये ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करी तो स्कूल से उसको निकाल दिया जाएगा। अब मुझे Yes. बताइए वो क्या करेगी? वो बिल्कुल ट्राई करेंगे, कंपलसरी। कंपलसरी। अभी हम मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसके अंदर कंपलसरी नहीं है ना सर। या आप दैट्स जॉब राइट। कर रहे हैं, आप जॉब आपका कंपलसरी है। आप अभी क्या Yeah. जॉब करते हैं? अभी एसोसिएट पोजीशन पे है। एसोसिएट पोजीशन के आप ऊपर हो, ठीक है। अभी आपका सर बोलते हैं आपको कि आप कितने बजे उठते हो आनंद जी? मैं 4:30 को। अच्छा, 4:30 को आप उठते हो सुबह। यस। रात में कितने बजे सोते हैं? रात में 10 होता। अच्छा, 10 बज जाते। अभी Yes. आपके जो मेन अथॉरिटी है वो बोलते हैं कि आनंद, बोलो सर। अगले 8 दिन के लिए आपको सर। रात में 11 बजे से ट्रेनिंग है, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, और आपको कंपलसरी अटेंड करना। अगर आपने नहीं अटेंड किया तो आपका 10,000 रुपए सैलरी कट कर दूंगा, ओके। कम कर दूंगा 10,000 रुपए सैलरी हर महीने। ओके सर। तो क्या आप 11 से 12 बजे जगेंगे या नहीं जगेंगे, या बोलेंगे ठीक है सर जान दो, 10,000 रुपए की तो बात है, काट लो? यस। क्या बोलेंगे? अभी कैसा तो भी ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता 11 to 12। क्यों? वो क्योंकि तो आपकी पैसा जाता ना। जिंदगी का सवाल है। यस। तो यही मेडिटेशन आपकी जिंदगी का सवाल है भैया। ये आपके स्ट्रेस, अगर आपने लाखों रुपए कमा लिया, आप लाखों काम कर रहे, लेकिन आप आपके स्ट्रेस लेवल को नहीं संभाल पाए, आपके माइंड लेवल को अगर नहीं मैनेज कर पाए, तो आपका आगे चल के ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत सारी बीमारी आपको ये हो जाएगी, माइंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे, बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। यस। तो आपको पहले प्राइवेटाइज उसके अंदर सेट करना होगा कि यार ये मेरा एकदम कोर है, मुझे इसको करना ही है, तभी आप इसे कर पाओगे। अगर आप कोर नहीं समझोगे तो आपने अभी क्या समझा पता है? ठीक है, किया तो चल रहा है ना, नहीं किया तो कुछ मेरी जिंदगी में कुछ हो रहा है क्या? लेकिन जब तक आपकी ये आपकी मेंटेलिटी रहेगी तब तक आप उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं दे पाओगे। जब आपका मेंटेलिटी शिफ्ट हो जाएगा, यार अगर 1 साल, अगर 6 महीने अगर नहीं किया ना, तो आने वाले 6 साल मेरी जिंदगी के बर्बाद हो जाएंगे। यस। और कहा जाता है ना कि हमारे शरीर के 2 भाग होते हैं, फर्स्ट भाग ये और सेकेंड भाग ये, इसके नीचे वाला, और पहला भाग इसके ऊपर वाला। तो जो जिंदगी में इसके ऊपर काम करता है ना, ये वाले भाग के ऊपर, हाँ सर बोलो। वो ही जिंदगी में सक्सेस की राह पर पहुंच पाता है। और जो व्यक्ति ये नीचे वाले भाग पर काम करता है ना, वो जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहता है। वो मेहनत तो बहुत करता है लाइफ में, भागता तो बहुत है, दौड़ता बहुत है, बहुत भागदौड़ वाली बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता, एक एबंडेंस लाइफ नहीं जी पाता। समझे? तो इसके ऊपर काम समझे सर। करना शुरू करो, और इसके ऊपर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, तो आपका माइंड आपके सामने नए रास्ते खोलेगा। अभी आपके सामने आपको नए रास्ते नहीं दिखेंगे, अभी आपको बस ये दिख रहा है यार इतना टाइम है, कैसे करूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, कैसे करूं, क्या करूं। टाइम तो बचता ही नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरी मेहनत चल रही है ना, इधर तो मेहनत ही नहीं चल रही है। समझे? ओके। तो होगा फिर आज से। हाँ होगा सर। सर बिल्कुल। और एक बात बोलो। अभी मेडिटेशन वो करते ना, हाँ। वो जब करते समय मिनिमम एक मैन को कितना कितना आवर स्लीप करना, मतलब कितना आवर सो जाना डेली? अच्छा, मेडिटेशन करते करते सो जाते हो आप? नहीं नहीं वैसा नहीं। हाँ। अभी जो मेडिटेशन करता ना, सो वो आदमी को मिनिमम कितना आवर सोने के लिए देखो, लगना? कहा जाता है कि अगर आप अच्छी नींद अगर लेना है, आपको बेस्ट परफेक्ट नींद लेना है, तो 4 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत होती है। ओके। लेकिन वो कैसी होती है 4 घंटे की नींद? कि वो 4 घंटे पूरी तरीके से आप पूरे सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाओ। ओके। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके बाजू में चिल्ला भी रहा है, अगर बैंड भी बज रहा है आपके बाजू में, तो भी आपको सुने नहीं दे रहा है। ओके। समझ गए? जैसे बोलते हैं ना कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, सुना होगा ना, 3 से 4 घंटे की नींद लेते थे। लेकिन कैसे लेते थे? जब काम करते करते जब उनको नींद आती थी तब सो जाते थे।
ओके उनके उनके पास से डीजे बज के जा रहा है, उनके पास से लोग बैंड बजा रहे हैं, उनके पास में बच्चे रो रहे, उनको सूद ही नहीं होती थी। ओके ठीक है, लेकिन आज हमारा क्या होता है, सोने से पहले हम 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल देखते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चलता है। इसी वजह से हम हाँ अच्छी नींद नहीं ले पाते। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है सो पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, नरेश थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, यस प्रीति सर, आपको लेंगे पहले यहाँ पर मेघना जी के यहाँ से कोई क्वेश्चन है? यस सर, प्लीज। हाँ सर, प्लीज पूछिए। सर, अभी हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमको बिजनेस करना है। हाँ। तो जब माइंडसेट बिजनेस का है, अभी ये ट्रेनिंग लेके हमको कैसे वो बिजनेस का फायदा होगा? यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। देखिए, ट्रेनिंग मीन्स क्या, समझना, ट्रेनिंग मीन्स क्या? सीखना। सीखना। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सीखना जरूरी है। नहीं, मगर वो बिजनेस का सीख अलग है, और ये लाइफ पैटर्न और लाइफस्टाइल का सीख अलग है। देखिए, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में आप कुछ चीजें, थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं। अगर आपको एक कंपनी को चलाना है, पर्सनालिटी कैसी होना चाहिए? पर्सनालिटी कैसी होना चाहिए? ड्रेसिंग पर्सनालिटी होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए। भाई, दो चीजों से आ सकती है लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर। सबसे पहला तो जैसे प्रीति सर ने बोला कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, उससे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, उससे आप हो सकते हैं। या आप किसी ट्रेनर से, वहां पर कोई ट्रेनिंग देने के लिए आते, कोई ट्रेनर से आप सीख रहे। सेकेंड, क्या आपने कंपनी ओपन किया, आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको मार्केटिंग पूरी तरीके से सिखाती है। आपको, आपने कंपनी तो ओपन कर ली, कंपनी के अंदर आपको सेल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सेल नहीं करोगे तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। तो यहां पर आपको सीखने के लिए मिलता है कि आप किस तरीके से सेल अप कर पाए। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री मतलब क्या? ट्रेनिंग इंडस्ट्री मीन्स होता है सीखना। यहाँ पर ट्रेनिंग इंडस्ट्री मतलब ये मत लीजिए आप कि किसी लोगों को सिखाना है, बस ट्रेनिंग देना है। नॉट एट ऑल, ये केवल इतना ही नहीं है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री बहुत अलग लेवल की चीज है भाई। प्रीति सर यहाँ पर है, वो आपको बताएंगे कि ये जो इंडस्ट्री है एक अलग लेवल की इंडस्ट्री। हम उसको केवल ये मत सोचिए कि आप बिजनेस कर रहे तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री मेरे क्या काम का है। यही उसकी कड़ी है जो आपको वहां ले जाएगा, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाएगा। ये कड़ी है। आपने बिजनेस ओपन किया, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए, आपने सीखना शुरू किया, हमसे सीखा, इसके बाद में फिर आपने आपके जो जो चीजें सीखी आपके बिजनेस में अप्लाई की। आपके ऐसे जो कनेक्शन मिलेंगे, आपके जैसे 50 लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, उनसे आपको एक अलग आइडिया मिलेगा, उन लोगों से आपका कोलेबरेशन होगा यहाँ पे। समझे आप? चलिए, ग्रेट, थैंक यू। यस प्रीति सर, बोलिए। हाँ सर, प्लीज। सर सॉरी, कोई मेघना नहीं। सर है ना सर, हाँ वो सर। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री से मेरा बिजनेस प्लान है ना, उसका क्या लिंक है पूछ रहे थे। एक्चुअली माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर। सर, आपका अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड है बोले आप, और मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली 50,000 बोले आप। ये सर, हाउ टू अर्न 50,000 मंथली? यू कैन टीच द स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन सिविल इंजीनियरिंग और diploma in civils. So you can train them after pass out how to earn 50,000 in first year, all 12 months. How to earn? You can teach them, and you can take him as a trainer in your team, free of cost, or minimum salary you can pay them, and you can build your team in minimum low cost. So you can start your team with the minimum investment. This will help maybe, and you can take money from them, and you can invest where you want to learn. Those who are earning 2 lakh 3 lakh per month, you can take training from them. So this is sorry sir if I am wrong. नो नो नो, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, सही जवाब था आपका, ग्रेट। मेरा नॉलेज यस, में था सर, वो बताए। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। हाँ सर, प्लीज बोलिए। सर, आफ्टर
civil engineering, even I was in teaching field for 8 years. I was Okay. assistant professor in St. Joseph Engineering College, Mangalore. Okay. So why I shifted my job again is there is a huge decline in civil engineering. Yes, sir. Students are not बिल्कुल getting सर, आपको into शिफ्ट नहीं करना है, यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना है। यहाँ पर आपका केवल देखिए क्या, यहाँ पर मैंने आज जो ट्रेनिंग दिया ना उसमें कुछ चीज सिखाई आपको, इनोवेशन। ये शिफ्ट नहीं होना है, ये इनोवेशन है। आपका जॉब चल रहा है, आप उसे चलने दीजिए, कोई वो नहीं है, ये इनोवेशन है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैंने ऑटोकेड किया है, 3D मैक्स किया हुआ है, ड्रीम प्लान किया है, गूगल स्केचअप किया हुआ है। मैं रेलवे की जो आरसीसी का ये बनते हैं, स्लीपर बनते हैं ना, सुना होगा, उसकी कंपनी में मैंने काम किया है, पाटिल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक इनोवेशन है केवल। यहां पर आप जितना इनोवेट करोगे, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में एक अलग स्किल आती है ना, तो वो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। आपको अलग नहीं जाना है, आपको जाना आपकी ही लाइन में, लेकिन वहां से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑटोकेड आपको ऑलरेडी आता होगा, ऑटोकेड सिखाने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, अगर अच्छे तरीके से सिखाए तो। ठीक है, आज 1 महीना सिखाने का कितना पैसा लोग चार्ज करते हैं ऑफलाइन में? 1-1 लाख रुपए भी कर रहे हैं, कोई 50,000 भी कर रहा है। अब वहीं पर आप उनको हफ्ते में 1 दिन सेशन ले रहे हो, आपने 3 महीने का कोर्स बनाया और वही कोर्स का आपने 50,000 रुपए, आपने 20,000 रुपए केवल चार्ज किया। 20,000 रुपए चार्ज करने के बाद में आपने 100 लोगों को टीच किया, कितना पैसा हुआ मुझे आप बताइए? एक से आपने केवल 20,000 लिया, 2 लाख, 2.5 लाख, 20 लाख रुपए आपके पास में आ गया। अब बताइए आपने वहां पर किया क्या भाई? आप तो केवल 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटा देने के बाद में 20 लाख रुपए कौन दे रहा है आपको? तो इंडस्ट्री बहुत अलग लेवल की इंडस्ट्री है ना। अभी आप जब देखोगे ना, इस इंडस्ट्री में अभी आप आए नहीं है, अब जब आओगे ना तो आप देखोगे सर कि ये इंडस्ट्री मतलब किस तरीके से ये इंडस्ट्री बूम कर रही है। अभी मैंने आपको जो बताया कि जहां पर मैं ट्रेनिंग लेने गया था, वो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर, 11 बिजनेस है उनके, 11 बिजनेस। अब सोच के देखो, 5,000 मतलब 500 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर है वो वाले बिजनेस से, और केवल ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस से ट्रेनिंग देने से 500 करोड़ का टर्नओवर है उनका, ट्रेनिंग देने से केवल। तो 11 बिजनेस पे तो उन्होंने लगा दिया वो लोगों को। आप जो बिजनेस ओपन करोगे ना, वहां पे आप लोगों को लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे का अगर आपको उतना पैसा मिलेगा तो बुरा क्या है। और फ्रीडम लाइफ, जहां घूमते फिरते, जहां जाना है वहां पे घूमते फिरते जाओ, जहां पे रहना है वहां से ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए आपके पास में, इनफ, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास, कुछ भी नहीं। यस, अभी हम वाइंड अप करेंगे 5 मिनट। सर हाँ सर ನೀವು मंगलूर हिंदी में बात करो सर। आप मंगलूर से बोले, मैं भी कर्नाटक का हूँ। यहाँ जमखंडी बीजापुर साइड में वो मंगलूर स्टाइल का घर बनाने के लिए हम लेबर में 1 साल से ढूंढ रहा हूँ सर, लेबर नहीं मिल रहा है और मुझे इंजीनियर भी नहीं मिल रहा है। मैं इंटरनेट में सर्च करता हूँ, नॉर्मली 90% पीपल्स आर फ्रॉम केरला, क्योंकि वो केरला स्टाइल हाउस बोलते हैं इंटरनेट में, वो फेसबुक ऐड में आता है। बट कर्नाटक वाला एक भी नहीं मिल रहा है, मिला तो वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से मैं नहीं आ सकता सर, देखिए कितने बड़े लाइन तो अभी आपके लिए यहाँ पे खुल गई। सर। और थिंग, मंगलूर स्टाइल का घर है ना सर, वो रेड स्टोन का विदाउट फिनिशिंग, स्टोन का फिनिशिंग करके घर बना रहा है। मुधोल और जमखंडी बीजापुर में नियरली 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीस का घर रेडी हो रहा है अभी। वो केरला लोग आके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कर्नाटक वाला एक भी लेबर नहीं हुआ। देखिए सर कितना बड़ा, मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ समझा आपने? ये वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री की शक्ति, कोलेब्रेशन, क्या बोलते हैं, कोलेब्रेशन। यहाँ पर ये एक शक्ति है कि आपको ऐसे लोग यहाँ पर मिलते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे आपको। चलिए ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। और सर आपका नाम आपने क्या बताया? सर आपका नाम प्रीति मैम, मेघना मैम के यहाँ से? प्रशांत। प्रशांत सर,
तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं ये करना है, फटाक से मैम के साथ डिसीजन लीजिए, जुड़ जाइए, ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, एक अलग रास्ते पे आप चलने वाले हैं। आपको लाइन नहीं चेंज करना है, लाइन आपकी ही है, और उसी लाइन के अंदर आप कैसे बेस्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको एक वो बताया ना, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, आपके रास्ते ओपन करना है चारों तरफ, ठीक है, और वो रास्ते आपके यहाँ से ओपन हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने आपका समय दिया, और डेफिनेटली आपको कैसा लगा आज का सेशन, एक छोटा सा वीडियो या एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज के रूप में मैम को जरूर पहुंचाए, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि मुझे भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि आगे मैं आप लोगों के साथ में आता रहूं, अपना समय निकालूं, आप लोगों के साथ में आऊं और ट्रेनिंग दूं इसी तरीके से। क्योंकि अभी तो मैंने केवल ये मेरा थोड़ा सा टेलर दिखाया है, ये तो टेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर पूरी 3 घंटे की पिक्चर अभी बची है, ये तो केवल टेलर था आपका 5 मिनट का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। यस, ओके सर, बहुत बहुत दिल से हाँ, मैडम। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आपका टाइम दिया। और मैं सोचती हूँ कि जो प्रशांत सर ने पूछा, तो मैं थोड़ा सा ಕನ್ನಡ में बोलना चाहती हूँ। ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಕುಂತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದದ ನಿಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ। ನಿಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗೆ 10 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವ। ಈಗ ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ನಮ್ಮ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ನನ್ ತರಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಇವತ್ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕಮಾಸ್ಲತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವ್ 20 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಕಮಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದ। ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಇದ್ದೇವಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಟೀಮ್ದವರೇ ಇದ್ದಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾರಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಾಗ ಬೆಳೆಯೋದದ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು। ನಮ್ದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ। ಒಬ್ನಿಗೆ ನಾವು 2,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ 1 ನಿಮಿಷನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಅದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರು ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। अब तक आपने बहुत अच्छा सा हमारे सेशन लिया सर, और एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने कहा कि 30 मिनट्स के ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी आपने हमारे टीम को इतना सारा वैल्यू दिया, और उस वैल्यू को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो मल्लेश सर है वो ऑलरेडी एनरोल होने के लिए रेडी है, और भी आ जाएंगे। अभी तो प्रशांत सर है, मेघना मैम है, उनको तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और एक्चुअली ये इंडस्ट्री की खासियत ही यही है कि देखिए, अगर मेरे पास में मतलब ऑलरेडी एक मैम को भी ट्रेनिंग देना था, तो मेरे पास में समय नहीं था, 30 मिनट का मैंने ऑलमोस्ट बोल के रखा था, 30 to 45 मिनट। लेकिन ये इंडस्ट्री एक्चुअली ऐसी है ना कि मतलब वो क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री से ऐसा मतलब एक लगाव, एक प्यार, जिस चीज से आपको प्यार होता है ना, उस चीज में आपको समय का नहीं पता चलेगा। और मैंने आपको पता है कितनी चीजें शेयर की मैंने आपको, 4 चीजें आपको मतलब बताई ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जो फेल की हो जाते हैं, और 5 चीजें केवल आपको चीजें शेयर की, सिर्फ 9 चीजें मैंने आपको शेयर की, उससे कुछ ऊपर शेयर नहीं किया। उसमें मेरा इतना समय क्यों? क्योंकि ये एक लगाव है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि एक सीधा सा सिंपल सा मेरा एक ही मिशन है, जो एक विजन, एक मिशन है ना, वो यही है मेरा कि यार मैं जैसे जो जिंदगी से उठाओ, ठीक है, जिस गरीबी को मैंने देखा, जिस सिचुएशन को मैंने देखा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे या मेरे से जो ऊपर भी है, उनकी जिंदगी को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, उनकी जिंदगी को मैं कैसे बदल सकता हूँ। और अगर मेरे कारण अगर
500 लोगों की भी जिंदगी बदल गई, वो 500 लोगों के 5000 परिवार बदल जाएंगे। और जो 5000 परिवार बदलोगे ना, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों की दुआएं ऑटोमेटिकली मुझे लगेगी। तो वही मोटो के साथ में मैं काम करता हूँ। और जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ उस समय मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि कितना समय हुआ, कितना ये हुआ, पूरा दिन भर भी ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का, सभी ने आपका टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे आगे। चलिए मैम, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।